Okay. करिश्मा गाना ओके करिश्मा गाओ दूसरे सब रिपीट करेंगे बोल हाँ जय सच्चिदानंद हरे भोजी दादाजी हरे दादाजी તમારા વિના કાય રૂઠતો નથી તમારા હરે હોજી દાદાજી હરે તમારા વિના કાય રૂઠતો નથી તમારા जगत को संगे जदू जगत को संगे जदो केवल सत्संगे जसो केवल सत्संगे जसो दादाजी नो हसतो दादाजी हसतो शमने दर्शन था सो समणे दर्शन थाता सो हीरा मोती महाराजी हीरा मोती महाराजी समृद्ध सतिया विना डल रूठતું નથી समृद्ध सतिया विना डल उठारतो નથી हरे ओजी दादाजी हरे दादाजी તમારા વિના કાય ગોતતું નથી તમારા વિના ક્યાંય ગોતતું નથી દુનિયા ભરમાં લોકો લાગે દુનિયાભરમાં લોકો લાગે સત્સંગ વિના સૂનો લાગે સત્સંગ વિના લાગે વીરવો દિવસ રાત જાગે વીરો દિવસ રાત જાગે જ્ઞાની ભવની બાવટ વાગે જ્ઞાની ભવની બાવટ ભાંગે લોકો અતિક્રમનાજી લોકો અતિક્રમણજી આત્મ રમના વિના કાય રૂચતું નથી આત્મરમણા વિના કાંઈ રૂચતું નથી હરે હોજી દાદાજી हरे होजी दादाजी તમારા વિના કાય ખોટતું નથી તમારા વિના ક્યાંય ખોટતું નથી જય સચ્ચિદાનંદ जय सच्चिदानंद ओके आज तो बोर्ड ऑडियंस कम है ओके श्रेया दीदी नंबर 1 हाँ जय सच्चिदानंद 9 कलम हाँ નથી સંભળાતું સંભળાય છે કોઈને નો
No, Shreya. Shreya, no. Okay, Monica. જય સચ્ચિદાનંદ. હે દાદા ભગવાન, મને કોઈ પણ ધ્યેયધારી જીવાત્માનો કિંચિત માત્ર પણ અહમ ના ડૂબે, ના ડૂબાય, ડૂબવા પ્રતિ ના અનુમોદાય એવી પરમ શક્તિ આપો. મને કોઈ પણ ધ્યેયધારી જીવાત્માનો કિંચિત માત્ર પણ અહમ ના ડૂબે એવી સ્યાદવાદ વાણી, સ્યાદવાદ વર્તન, સ્યાદવાદ મનન કરવાની પરમ શક્તિ આપો. Continue. હા. હે દાદા ભગવાન, મને કોઈ પણ ધર્મનો કિંચિત માત્ર પણ પરમાન ના ડૂબે, ના ડૂબાય, ડૂબવા પ્રતિ ના અનુમોદાય એવી પરમ શક્તિ આપો. મને કોઈ પણ ધર્મનો કિંચિત માત્ર પણ પરમાન ના ડૂબે એવી સ્યાદવાદ વાણી, સ્યાદવાદ વર્તન, સ્યાદવાદ મનન કરવાની પરમ શક્તિ આપો. હે દાદા ભગવાન, મને કોઈ પણ ધ્યેયધારી ઉપદેશક, સાધુ, સાધ્વી કે आचार्यનો अवनवाद, अपराध, अविनय ना करने की परम शक्ति आपो. हे दादा भगवान, मैंने कोई पण धैर्यधारी जीवात्मा के प्रति किंचित मात्र पण अभाव, तिरस्कार ना किया जाए, ना करवाया जाए, कर्ता के प्रति ना अनुमोदाय एवी परम शक्ति आपो. हे दादा भगवान, मैंने कोई पण धैर्यधारी जीवात्मा के साथे क्यारे पण कठोर भाषा, तंतीली भाषा ना बोली जाए, ना बुलवाई जाए के बोलवाना प्रति ना अनुमोदाय एवी परम शक्ति आपो. कोई कठोर भाषा, तंतीली भाषा बोले तो मने मृदुरुजु भाषा बोलवानी परम शक्ति आपो. हे दादा भगवान, मैंने कोई पण धैर्यधारी जीवात्मा के प्रति स्त्री, पुरुष या नपुंसक गमे ते लिंगधारी होय तो तेना संबंधમાં કિંચિત માત્ર પણ વિષય વિકાસ સંબંધી દોષો, इच्छाओं, चेष्टाओं या विचार संबंधी दोषों न किया जाए, न करवाया जाए, कर्ता के प्रति न अनुमोदाय एवी परम शक्ति आपो. मने निरंतर निर्विकार રહેવાની પરમ શક્તિ આપો. હે દાદા ભગવાન, મને કોઈ પણ રસમાં લુદ્ધમાન પણ ન કરાય એવી પરમ શક્તિ આપો. મને સામરસી ખોરાક લેવાની પરમ શક્તિ આપો. હે દાદા ભગવાન, મને કોઈ પણ ધ્યેયધારી જીવાત્માનો પ્રત્યક્ષ અથવા પરોક્ષ જીવન તથા મૃત્યુ પામીનારો કોઈનો પણ કિંચિત માત્ર પણ અવનવાદ, अपराध, अविनय ना किया जाए, ना करवाया जाए, कर्ता के प्रति ना अनुमोदाय एवी परम शक्ति आपो. हे दादा भगवान, મને જગત કલ્યાણ નિમિત્ત બનવાની પરમ શક્તિ આપો, શક્તિ આપો. જય સચ્ચિદાનંદ. Okay, Divya, number 9. દાદા ભગવાન, અમને નિમિત્ત જગત કલ્યાણ કરવાનું નિમિત્ત બનવાનું પરમ શક્તિ આપો, શક્તિ આપો, શક્તિ આપો. સચ્ચિદાનંદ. Jai Satchidanand. Okay, very good. Okay, Eden Kaka, Jai Satchidanand. जय सच्चिदानंद. Okay, Jai श्रीमंत Satchidanand. तो बोला है. महेशानंद जी जय सच्चिदानंद. જય સચ્ચિદાનંદ. नमो वीतरागाय, નમો વીતરાગાય, नमो अरिहंताणम, નમો અરિહંતાણમ, नमो सिद्धाणम, નમો સિદ્ધાણમ, नमो आयरियाणम, નમો અયરીયાણમ, नमो उवस्सायाणम, નમો વસ્ત્રાયાણમ, नमो लोये सव साहुणम, નમો રવણે સવસાહુણમ, ऐसो पंचन मुक्कारो, એસો નમોકારો, सौवपा वप्पणासनो, તવ પુસ્તકાસન, मंगलाणम च सौवेसिम, મંગળાણમ, परमं हवै मंगलम. પરમં હરિ મંગલમ. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ઓમ નમો વાસુદેવાય, ओम नमः शिवाय. ઓમ નમઃ શિવાય. जय सच्चिदानंद. જય Jai हे Satchidanand. श्री सिमंदर स्वामी प्रभु, હે શ્રી કૃષ્ણ, हे श्री दादा भगवान, હે ભગવાન, हमने शुद्ध उपयोग पूर्वक हमने शुद्ध उपयोग पूर्वक सत्संग में बैठने की सत्संग में
सत्संग सुनने की, सत्संग समझने की और सत्संग रूप होने की परम शक्ति दे। और सत्संग रूप होने की परम शक्ति दे। मैं भाव कर्म, नो कर्म, द्रव्य कर्म, मैं भाव कर्म, मौन वचन काया, मन वचन काया, मेरे और मेरे नाम की सर्व माया, मेरे और मेरे आप परमात्मा स्वरूप प्रभु के दो चरणों में समर्पित करता हूँ। समर्पित करता हूँ। मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मैं शुद्ध आत्मा मैं हूँ। शुद्ध आत्मा हूँ, मैं शुद्ध आत्मा मैं हूँ। शुद्ध आत्मा हूँ, मैं शुद्ध आत्मा हूँ। मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मैं शुद्ध आत्मा मैं हूँ। शुद्ध आत्मा हूँ। मैं शुद्ध आत्मा हूँ। जय सच्चिदानंद। जय जय सच्चिदानंद। हिताक्षी बाल। हाँ जय सच्चिदानंद। हे दादा भगवान, आप मुझे ऐसी शक्ति प्रदान करें कि मैं अपनी हेल्थ को कभी भी कॉम्प्रोमाइज ना करूं, ताकि मेरा शरीर रूपी साधन मुझे मेरे ध्येय में यानी कि पढ़ाई में और सत्संग में हमेशा सहायक बने। मैं पढ़ाई में बिल्कुल सिंसियर रहूंगी। मैं बुरी सोबत से और कुसंग से हमेशा दूर रहूंगी। और कुछ भी हो, मेरा सत्संग कभी भी न छूटे, ऐसी परम कृपा करना। प्राप्त मन वचन काया के योग और अपने आत्मा का उपयोग केवल परोपकार यानी कि जीव मात्र की सेवा में ही करो, जो सबसे बड़ा मानव धर्म है। मैं हमेशा अपने साथ और स्वयं और अन्य सभी लोगों के साथ के जीवन व्यवहार में सिंसियर, मॉरल और प्योर बनी रहूं, ताकि मैं बराबर दादा भगवान की तरह उत्कृष्ट व्यक्तित्व का मान्य बन पाऊं। हे दादा भगवान, मैं आगे अपने माता पिता की हर बात सुनने का संकल्प लेती हूँ और उन्हें कभी भी अहंकार से जवाब नहीं दूंगी। कृपया इस संबंध में मुझे अनंत आंतरिक शक्ति प्रदान करें। जय सच्चिदानंद। किस तरह मम्मी के साथ? मम्मी के साथ आज अच्छा रहा था। अभी झगड़ना कम हो गया मम्मी के साथ? हाँ झगड़ा कम हो गया मम्मी के साथ? हाँ। क्या बात है, वेरी गुड। करिश्मा। ये दादा भगवान, मुझे पढ़ाई में समझने में जो बाधा है, हे दादा भगवान, मुझे पढ़ाई में समझने में जो बाधाएं अंतराय आते हैं, जो भी ऑब्स्ट्रक्शंस आते हैं, उन सभी को तोड़ने का मैं दृढ़ निश्चय करती हूँ। आप ऐसी कृपा करें कि जिससे मेरा दर्शन ऊपर का आवरण टूट जाए और मेरी पढ़ाई सही ढंग से हो, ऐसी आप मुझे परम शक्ति दें। जय सच्चिदानंद। वेरी गुड। दिव्या। हे दादा अब सबके बच्चे हमने आपके बच्चे दिल के हैं सच्चे, दिल दिल के के हैं हैं सच्चे, दिल भी है कच्चे, दिल भी है अच्छे कच्चे। अच्छे काम काम करेंगे करेंगे अच्छे अच्छे। अच्छे अच्छे। सच्चिदानंद। जय जय सच्चिदानंद। सच्चिदानंद। ओके, वेरी गुड। 3 दादा प्रेयर गुजराती માં करिश्मा। जय सच्चिदानंद। हे दादात्मा बड़बुदा, हे शुद्धात्मा दादा भगवान, नमे दादा उसने अभी सीखा नहीं है वो prayer। ओके ओके ओके, तो आज श्रेया। जय सच्चिदानंद। हे શુદ્ધાત્મા દાદા ભગવાન, તમે જુદા છો, શ્રેયા જુદી છે. હે શુદ્ધાત્મા દાદા ભગવાન, તમે રિયલ છો, શ્રેયા રિલેટિવ છે. હે શુદ્ધાત્મા દાદા ભગવાન, તમે પરમનન્ટ છો, શ્રેયા ટેમ્પરરી છે. જય સચ્ચિદાનંદ। Okay, अव्यय हिंदी में। अनम्यूट करो। हे शुद्धात्मा दादा भगवान, आप अलग हो, अव्यय अलग है।
हे शुद्धात्मा दादा भगवान, आप रियल ऑफ योर रिलेटिव है। हे शुद्धात्मा दादा भगवान, आप परमानेंट ऑफ योर टेम्पररी है। जय सच्चिदानंद। अच्छा, वेरी गुड। ओके, किसको मालूम है होमवर्क क्या था? ओके, साक्षी बा बोलो। जय सचिदानंद। हम लोग हमारा ये था कि हमने मम्मी पापा से क्या क्या सीखा है। ओके, बोलिए। हाँ, जय सचिदानंद। मैंने मम्मी से ये सीखा था कि मम्मी ने उंगली पकड़ के चलना सिखाया था, फिर मम्मी ने बोलना सीखा था, फिर कैसे हम खाना खाते हैं वो सिखाया था, फिर मम्मी ने बचपन में पेड़ पौधे के अंदर सभी के अंदर दादा भगवान शुद्धात्मा देखना सिखाया था। और अभी जब बड़े हो गए तो मम्मी ने रसोई करना भी सीखा। जब मुझे पढ़ने क्वेरीज होती थी तब मम्मी मुझे सिखाते थे, अभी भी मम्मी सिखाती है। और पापा से ये सीखा था कि पापा ने चेस, बैडमिंटन और टेनिस कैसे खेलते वो सिखाया है। फिर हम जब टीवी में कुछ ज्योग्राफी का देखते थे तो पापा एनिमल्स के सारे जो होते हैं वो सब कुछ पापा सिखाते थे कि एनिमल्स इस जगह पे रहते हैं और वो उसके ऐसे लाइफ स्टाइल्स होती है। और पापा ने दवाइयाँ भी लेना सीखा कि कौन से समय में क्या होता है, उस समय में कौन सी दवाइयाँ लेनी चाहिए। और जब हम बाहर जाते हैं तो हमें किसके साथ कैसा बर्ताव करना चाहिए, कैसे बात करनी चाहिए, हमें किस तरह से प्रश्न पूछना चाहिए, किस तरह से जवाब देने चाहिए। क्या बात है, आपने तो बहुत अच्छा स्टडी किया है। और इसमें से सब लागू पड़ता है कि कभी कभी भूल जाते हैं आप? कभी कभार ही भूलती हूँ, वैसे तो तो याद रहता है। हाँ, वेरी गुड। वो जो भूल के आप जाते हो तो बताना हमको, ओके? क्योंकि ये जस्ट टीचर्स बना 10% ही भूल जाती हूँ। क्या हुआ? 10% भूल जाती हूँ, 90% याद रहता है। ओके, बट ये देखो, टीचर सब जो सिखाते हैं ना वो 100% ग्रहण करने का होता है ना। ओके, श्रेया दीदी। हाँ जय सच्चिदानंद। मैंने मम्मी से ये सीखा है कि हम जब बाहर जाते हैं तो खरीदी कैसे करना, दूसरों को कैसे देना। और ये भी सीखा कि आगे जब एग्जाम्स और आगे पढ़ाई करना आता है तो फिर हमको कैसे पढ़ने का, कई तरीके से पढ़ने का होता है। और मैंने पापा से आज साइंस सीखा था, वो 3 चैप्टर्स सीखे थे। वो पापा ने सिखाया नहीं है? पापा ने सिखाया था। नहीं, कैसा गिनने का नहीं सिखाया पापा ने? नहीं? ओके, मोनिका दीदी। हाँ जय सचिदानंद। मेरी मम्मी ने ये सिखाया, चलना सिखाया था, और साथ ही कैसे बात करनी चाहिए बड़ों से वो भी सिखाया। और जो भी खाना कैसे बनाते, चाय कैसे बनाते, उन्होंने वो भी सिखाया था, और अभी वो सिखा भी हुई है। और मम्मी ने कैसे वो एक्टिव रहती है, सारा काम घर को कैसे हैंडल करती है वो भी सिखाया था। और मेरे पापा ने ये सिखाया कि जब भी कोई मार्केट जाते हैं तब वहाँ पर कैसे बिहेवियर होना चाहिए, और वह कैसे बातचीत करके हैंडल करना चाहिए, और साथ ही कितना मनी बिल कैसे पे करना चाहिए, और मनी कितना इनटू करके इजीली हम आंसर ला सकते हैं, वो भी सिखाया। तो मनी के बारे में क्या सीखा आपको? पापा ने जो भी 500 के नोट्स होते हैं तो उनको पहले गिन के बाद में उनको इंटू करके इजीली आंसर ला सकते हैं, बल्कि उन्हें गिन के बजाय। तो आपको कितना अलाउंस पापा देते हैं? हाँ कभी कभार देते हैं। मंथली अलाउंस कोई देते हैं पापा? नहीं, गिनने के लिए देते हैं, ओ, गिनने इम्प्रूवमेंट। के लिए, ओके। अलाउंस नहीं। हाँ करिश्मा, आपने स्टडी किया है कि अभी कल आप जवाब देंगे करिश्मा? ओके, कल बता रहा। ओके, अव्यय। हाँ जय सच्चिदानंद। मम्मी ने मुझे चलना सिखाया, और कहीं बाहर जाए तो सिंसियर रहने का,
और मम्मी ने पैसे गिनते कैसे वो सिखाया, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवाइड सिखाया। और आपने क्या लिखा, सारा आपने काम भी आपने सिखाया। लिखा है कि ऐसे आप बोलते हैं? आपके नोट्स में लिखे हैं? नहीं तो बल नहीं, कल 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 लिख के बाद अब ये रिपीट करेंगे हम। ओके, एवरीबॉडी शुड राइट इट डाउन इन योर नोट्स ना। ओके, और कल का होमवर्क है ऐड करने का है टीचर्स का, तो वो सीखने का है जो टीचर ने बताया, वो आपके साथ रहते हैं और डे एंड नाइट आपके साथ रहते हैं, वो बताने का है। ओके, क्योंकि टीचर तो बहुत बहुत सिखाते हैं, लेकिन आपने क्या ग्रहण किया है लाइफ टाइम के लिए? क्या बोला हिताक्षीबा? हाँ जी सच में मुझे ये बोलना था कि जब मेरी छोटी बहन आई थी, मैं 4 साल की थी, और मम्मी ने मुझे ये सिखाया था कि कैसे मुझे मेरी बहन को कैसे उसके साथ खेलना है, कैसे उसको जब उसे भूख लगे तो क्या करना है, उसे कैसे उसकी देखभाल करनी है, और ओ कैसे उसे खेलना है। तो वेरी गुड। तो अभी हिरन हिरन काका को भी भूख लगेगी तो आप अच्छी तरह से हिरन काका को भोजन देंगे। वेरी गुड। ओके दीपकानंद जी, हाँ दूंगी। जय वेरी सच्चिदानंद। गुड आंसर सतीश। जय सच्चिदानंद। मैं एक मेरी लाइफ का एक एग्जाम्पल मेरा मम्मी के साथ हुआ था, वो मैं बोलता हूँ। बहुत कुछ उसमें कवर हो जाता है, क्योंकि मैंने मम्मी से बहुत प्यार भी पाया है और बहुत मार भी खाया है, और उनसे बहुत कुछ सीखा भी है। फिर मैंने एक बार उनको बताया, पूछा था कि ये क्या है, आपके बड़े बेटे डॉक्टर बने हैं, आपकी छोटी बेटी ऐसा है, तो मैं ऐसा, आप तो पुत्र बना, तो आपने कभी भावना की थी ऐसी? तो उनका जवाब क्या था, मेरी भावना बगैर ही आप तो पुत्र बन गए। माय गॉड, आई वाज शॉक्ड, आई वाज शॉक्ड। दिस इज ट्रू स्टोरी। मैंने पूछा था उनको कि ऐसे कैसे होता है। मैंने जाना था कि बच्चों के लिए मदर का एक इसके लिए एक हिंदी मूवी का एक गाना है, सपने बुनती नजर माँ की होती है। वो अपने बच्चों की लिए सपने बुनते हैं, जैसे वो स्वेटर बनाते हैं ना, ऐसा बनाते हैं, तो उसका परिणाम सब आता है। शिवाजी जो थे वो उनकी मदर के कारण थे, महाराणा प्रताप भी जो थे उनकी जो माताजी थे उनके कारण थे। यानी माता पिता का बहुत बड़ा क्या बोले कंट्रीब्यूशन होता है बच्चों के पूरे होने के कारण, होने पर। तो ये तो क्या बोले, कोई शब्द नहीं है, लेकिन मूल बात तो ये क्या है कि मम्मी ने हमें मदर टंग दी। व्हाट इज मदर टंग? योर मदर टंग इज योर तमिल। समझ में आया? और ये देन मदर टंग का मतलब क्या है? अगर, और ये अपने APJ कलाम साहब जो थे, उन्होंने क्या कहा, यू, अभी ये तो एक बात है, यू मस्ट स्टडी योर बेसिक एजुकेशन इन योर मदर टंग। आपका जो प्राथमिक शिक्षा जो होती है 1 से 5 या 1 से 8 साल तक, यानी स्टैंडर्ड तक, वो आपकी मदर टंग में ही होना चाहिए। और ये मदर टंग में, क्योंकि हमारा जो एक्सप्रेशन है, हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है, वो टोटली ओपन होती है। और ये जिनका हो जाता है, ये वेरी लकी, बहुत अच्छा है। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। और हिरन काका आप बातें करें, लेकिन ओके, आपने मैंने आपको वो स्टोरी भेजा था, वो पढ़ा आपने? Those 3 kids IIT guys. या no, I'm asking हिरन काका।
No, but I was just asking. Yes, No. Did you read it, Deepakanji? yes, I read it very well. Okay. हिरन काका आपने रीड किया था? नहीं, नहीं। देखो दादा, हिरन काका होमवर्क करके नहीं आए तो क्या करेगा? उनको जो बहुत बिजी बहुत रहते हैं ना, और बहुत बिजी बॉय। हाँ, प्रॉब्लम ये है। मैं भूल गया। वो हमारे सत्संग में आते हैं, वो बहुत बड़ी बात है। अच्छा। और वो तो अभी खाना भी कभी कभी बना का पड़ता है। ओके। वो सब है। एनीबॉडी दूसरा किसी ने रीड किया हो? हमने पोस्ट किया था। नोबडी। तो प्लीज कल पढ़ो। और दीपक कल we can take it tomorrow, right? Yes, yeah, absolutely, yes. That will be better. After you read it, okay? Everybody must read that. और टीचर का बहुत अच्छा और टीचर क्या कर सकते हैं। That happened to be a true story. अरे ट्रू स्टोरी है। वेरी गुड। ओके एनीवे, हिरन का आपने सुना, बच्चों को थोड़ी बातें करो। हाँ, अरे एक मिनट, रेडी दादा, हाँ बोलो। I would request Taruba to say a few words as mother. UNMA, she has been very disciplinarian and at the same time very loving mother. Taruba, please. अनम्यूट कीजिए। अनम्यूट कीजिए। ओके। Yes, she's doing, yeah. As mother, आप प्लीज बताइए कि कैसे आपने अपने बच्चों को सपने में आपने सपना देखा बच्चों का, और you weave them to their goal. तो इसलिए मुझे दो चीजों का बहुत डर था कि कुसंग और कुटेव, और रजनी भाई ऑल द टाइम बाहर बहुत रहते थे। करेक्ट। इसलिए मैं इतनी स्ट्रिक्ट थी कि वो लोगों को थोड़े डरते थे, मेरे से बहुत डरते थे। मगर रजनी बाहर थे तो वो ऑल द टाइम दैट्स ओके करते थे। मगर मैं बहुत ध्यान रखती थी कि एक तो चोरी न करें, और कुसंग के साथ वो ड्रग्स और अल्कोहल में ना, वो मुझे सोने ही नहीं देती थी वो चिंता। और दूसरा के कुटे खाने पीने का वो सब। और उसके बाद क्या हुआ कि दोनों बेटों को ध्यान रखती थी, प्यार भी करती थी उनका, मगर इतना प्यार नहीं, बस स्ट्रिक्ट ज्यादा रहती थी। उनके पास क्या अच्छा है वो कभी मैं नहीं बोलती थी, मगर क्या नहीं है वो ऑल द टाइम में उनको पॉइंट आउट करती थी। उसके बाद ये दादा का ज्ञान मिला तो उसके धीरे धीरे वो इंडिया में पढ़ने के लिए गए। जब वापस आए तो ही वाज 28 इयर्स के बाद मैंने उनको कहा कि मुझे माफ करना, मैंने तुम्हें लोगों को बहुत पनिशमेंट दी है। और पनिशमेंट कैसे देती थी कि 1 वीक तक टीवी नहीं देखना है, बाहर नहीं जाना है किसी के घर, ऐसी पनिशमेंट वो लोगों को देती थी कि होमवर्क करो, पढ़ो, बट टीवी नहीं देखना है। तो वो लोगों को भी मालूम हुआ कि हम लोग ऐसे करते हैं तो हम नहीं देखने, तो इसलिए वो लोग कम नोटी नहीं होते थे ज्यादा। मगर अभी 28 इयर्स के बाद जब मैं सिंसिनाटी में 1 साल के लिए हमें भेजा था, तो हम वो लोग वहां थे, तो वो इंडिया से आया था बड़ा बेटा। तो मैंने कहा कि मुझे माफ करना, मैंने तुम्हें बहुत पनिशमेंट दिया है। तब मेरे कान को इसके बाद कि मम जो तुम स्ट्रिक्ट नहीं होती तो हम एकदम बिगड़ जाते, क्योंकि कई हमारे फ्रेंड है बहुत आउट लाइन पे चले गए हैं। तब मुझे आंख में से गंगा जमुना, मैंने बोला ये दादा की कृपा है। तो थोड़ा मदर को ज्यादा ध्यान रखना चाहिए, और बच्चों को पसंद नहीं होता है, मगर वो हम अपने बच्चों के लिए ही अच्छा कहते हैं। और अभी सारे पिट्सबर्ग में हमारे प्रीस्ट है, सभी लोग बोलते हैं, इसमें मुझे प्राउड लेने की जरूरत नहीं है कि No, you can take, you have right to take that pride. रवि भाई और तरुबेन के बच्चे जो है ना, ऐसे कोई नहीं हो सकते हैं। मगर फिर भी मुझे इतनी अच्छाइयाँ इनमें नहीं दिखाई देती, क्योंकि मैं ज्यादा एक्सपेक्ट बहुत करती हूँ वो लोगों से। आपका स्टैंडर्ड बहुत हाई है। तो अभी बड़े हो गए तो कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, आप उनके वो करते हैं, मगर अटैचमेंट दादा ने निकाल दिया। वेरी गुड। अटैचमेंट बस वही मेरा।
थैंक यू हाँ, तरुबा। दीपक दादा, हम भी घबराते हैं और डिसिप्लिन के लिए तो हमको बहुत हम मिस्टेक करते हैं। वो अच्छा है, कोई कोई तो वॉचमैन वॉचवुमन चाहिए जो कि दे कीप वॉच ऑन अस, वो तो अच्छा ही है। वो तो हमको मालूम है। हिरण काका प्लीज हेल्प मी। वो तो दीपक आया ऑलवेज तरुबा के पास साइड में होता है, हम अकेले रह जाता है। हिरण काका प्लीज अरे प्लीज तरुबा हेल्प मी। आपके साथ है, तरुबा आपके साथ है, वो पता नहीं चलता है आपको। शी इज योर स्ट्रेंथ, यू नो दैट, ग्रेट स्ट्रेंथ। वेरी गुड। ओके But ओके। she works silently like a genius. Yeah, she has done a lot of stuff, good stuff. No question about it. जय सच्चिदानंद। जय सचिन। ओके हिरण काका, जय सच्चिदानंद। आपकी भी थोड़ी स्टोरी बता देना। स्टोरी अभी जो बच्चों ने बात करी उसमें से थोड़े क्वेश्चन भी खड़े हुए कि सबने बात करी कि जैसे मम्मी पापा है, उन्होंने उंगली पकड़ पकड़ के चलना सिखाया, बोलना सिखाया, खाना पीना सिखाया, ये सब कुछ सिखाया, किससे किससे कैसी बात करते हैं वो सब सिखाया। लेकिन गलत बोलने का मन होता है किसी को कि आज लेसन नहीं किया है तो मैं बोल दूंगा लेसन हो गया, ऐसा किसी को झूठ झूठ बोलने का। झूठ बोलने का मन होता है किसी को? अब यही ना बोलते हैं श्रेया। हाँ, नो, हम लोग तो बहुत झूठ बोलते थे, लेसन नहीं किया है तो भी लेसन किया ऐसा बोलते थे। आप लोगों से हुआ ऐसा? नहीं, ये बच्चे का ये हमने देखा कि दे आर वेरी फ्रैंक, वेरी ओपन, ऐसा हाँ। है वैसा रियली बोल देते हैं। आई फिर मीन हेड्स मोबाइल ऑफ टू देम। फिर मोबाइल एक घंटा देखा है और मम्मी पूछेगी कब से मोबाइल देखते हो तो क्या जवाब देंगे? 5 मिनट। 10 मिनट कहेंगे ना, है? ऐसे करते हैं श्रेया कभी कभी। टीवी देखते हैं हाँ, कभी 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 अब ये कभी। करते हैं। लेकिन यहाँ पर तो जो पूछा जाता है तो वो बोलते ही है 2 घंटा देखा हाँ। वगैरह वगैरह। सॉरी। तो ये जो अलग अलग प्रकार की अपने को बुरी आदत पड़ती है गलत बोलने की, अपने को कोई भी अपना फ्रेंड है और फ्रेंड के साथ अपना लगाव है, लेकिन वो फ्रेंड के साथ रहते हैं और मम्मी को अच्छा नहीं लगता है, तो आप क्या कहेंगे कि नहीं मैं उनसे नहीं मिलता हूँ कि नहीं मिलती हूँ, कहेंगे कि नहीं? बहुत सारी चीज ऐसी है बोलो कि बोलो, हाँ वहाँ ना पे बोलो। हाँ बहुत सारी चीज ऐसी है। मैं तो एक 2-4 जो मेरे को पता है उतना एग्जांपल देता हूँ, लेकिन बहुत सारी चीज ऐसी है कि जिससे अपने व्यवहार से, ये जो तरुबा ने बताया कि मम्मी पापा को टेंशन रहता है, बहुत सारी ऐसी चीज है कि मम्मी पापा को टेंशन होता है। कई चीजों में मम्मी पापा को टेंशन होता है कि नहीं होता है अपनों से? होता है ना? तो आपका व्यवहार सब एकदम बराबर होगा तो टेंशन होगा, कि व्यवहार में कुछ गलती होगी तो टेंशन होगा? व्यवहार में कोई गलती होगी हाँ, तो क्या व्यवहार में गलती होगी तब उनको टेंशन होगा? तो क्या व्यवहार में कैसी कैसी गलतियां होती है तो उनको आपको कुछ पूछा है और आप जवाब देते हैं, लेकिन उनको तो जवाब पता है कि आपने क्या किया है, फिर भी आपको पूछते हैं, वो आपको पता नहीं है। मम्मी पापा को आपने कितना टीवी देखा वो पता है, कितना मोबाइल देखा पता है, आप किसके साथ घूमे वो पता है, आप क्या करते हो पता है, फिर भी आपको पूछते हैं। तो वहां पे ये कहीं ना कहीं अपने को जो भी चीज अच्छी लगती है उसके लिए कुछ ना कुछ छुपाना पड़ता है, कुछ ना कुछ छुपाना पड़ता है कि नहीं? मम्मी पापा से तो मम्मी पापा को टेंशन क्यों रहता है कि उनको आपकी आपकी हर हरकत है उससे वो वाकिफ है, और उसके बाद आप जब उसका सही आंसर नहीं देंगे तो बहुत ही टेंशन होता है। मम्मी पापा को टेंशन कौन सी चीज का है कि आपने जब एक बार उनसे कुछ गलत बोल दिया तो बहुत बड़ा टेंशन उनको होता है। समझ में आया? तो ये जो बुरी संगत है,
बुरी संगत अपने को नहीं लगती है, अपने को वो अपने जो फ्रेंड है वो बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन मम्मी पापा को पता है कि ये जो फ्रेंड है उसके साथ ये रहेगी या रहेगा तो उसको बुरी आदत लग सकती है, लेकिन अपन क्या करेंगे कि उससे छुपाएंगे, काफी चीज अपने को छुपानी पड़ती है अभी। तो अगर छुपाएंगे नहीं और सब सही कहेंगे तो मम्मी पापा को क्या कभी भी टेंशन नहीं होगा। टेंशन कब होगा कि आप छुपाएंगे तो ये जो सब बुरी आदत अपने को कहीं ना कहीं से होती है, गलत बोलने का, या तो उन्होंने जो चीज के लिए मना किया है वो करने का, ये खाने का नहीं ऐसा बोला है फिर भी अपन खा लेते हैं, फिर बता नहीं सकते हैं, बाहर खाने का मना किया है फिर भी अपने को खाने का मन होता है तो खा लेते हैं। बहुत सारी चीज है जो चीजों में उन्होंने मना किया है, लेकिन अपने को ये देखने का है कि ये जो जो चीजों से मम्मी पापा को टेंशन होता है वो चीज मेरे पास आई कैसे, समझ में आया? तो कि ये कहाँ से आया, ये गलत व्यवहार जो है जिससे मम्मी पापा को टेंशन होता है वो कहाँ से आया, तो वो देखने का है। और जैसे अपने को पता चले तो अभी इतना पता नहीं चलेगा, लेकिन ये आपको आपसे मम्मी पापा है वो आपसे कितने बड़े हैं, तो उन्होंने कितनी दिवालियां देखी है, आपसे ज्यादा दिवाली देखी है ना। हाँ। तो उस हिसाब से अपने को क्या करना है कि अपने को पता चले कि ना चले, जो मम्मी पापा कहते हैं उसके हिसाब से अभी करेंगे। अपने अपने को जितना भी सिखाया वो सब अपनों ने बताया, लेकिन ये जो व्यवहार है जो मम्मी पापा सही में जहाँ पे उनको टेंशन रहता है वहां अपने को बहुत सारी चीजें समझाते हैं बताते हैं, लेकिन उतना अपन फॉलो नहीं कर पाते हैं, तो वो भी चीज बहुत देखने की जरूरत पड़ती है। क्या कहते हैं सर? हाँ, तो ये मेरा आपको एक निवेदन है, और आपको जिस तरह से उसको समझना है वो आप सोचना कि अपना व्यवहार घर में मम्मी पापा के साथ किस तरह से रहने का है। ठीक है रजनी दादा? यस, वेरी गुड, बहुत बहुत अच्छा, आपने बहुत लेसन किया कि ये तो लेसन तो बहुत बहुत अच्छा बढ़िया है कि यू नो कि ओपन, टोटली ओपननेस टू द पेरेंट्स, वो होएगा ना तो पेरेंट्स का जिंदगी आप बहुत 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 इजी कर देंगे। तो प्लीज वो सोचना, ओके? क्योंकि इसमें क्या होता है हिरेन काका के डर लगता है डांटी मिलेगा, डांटी मिलेगा, कुछ हमने गलती किया तो ऐसा लगता डर के यू नो डांटी देगा, ये देगा, ये देगा, तो वो कैसे रिकंसाइल ये कर कैसे सकते? समझने का है जो रजनी दादा ने बताया, वो कैसे समझने का है कि जैसे अभी अपने को जो डांट पड़ती है वो अपने घर में जो मम्मी पापा है वो अपने है ना, उनसे डांट पड़ती है वो अपने ही है ना कि बाहर के है, अपने ही है ना। लेकिन ये जो आदत आपको हो गई, अगर गलत बोलने की आदत बन गई, क्योंकि एक बार जब गलत बोलते हैं और उसमें सक्सेस होते हैं, कोई भी चीज है उसमें जब अपन सक्सेस हो जाते हैं तो वो दोबारा होता है। तो इसी तरह से ये झूठ बोलने में कि कोई चीज छुपाने में आप जैसे जैसे सक्सेस होते जाएंगे आपकी उम्र भी बढ़ती जाती है। तो जैसे आपने बहुत अच्छी पढ़ाई की, कोई डॉक्टर बना, इंजीनियर बना, अच्छी कोई बड़ा व्यापारी बना, लेकिन कोई भी जगह है वहां पे आपके ऊपर विश्वास, वो बहुत 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 बड़ी चीज है। आपके ऊपर किसी को विश्वास होना वो बहुत बड़ी चीज है। अगर आपको जो आदत पड़ गई गलत बोलने की, छुपाने की, और आप उसमें सक्सेस हो गए, तो अभी तो जो डांटते हैं घर में कहते हैं वो तो अपने हैं, अपने को घर में से बाहर नहीं निकाल देंगे। लेकिन जब आप कोई जॉब करने के लिए जाओगे, कोई बिजनेस करते होंगे, कोई भी व्यवसाय है, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, वहां आपकी आदत ये बरकरार रही तो आपको वहां से निकाल दिया जाएगा। वो बात समझने की है। क्या कहते हैं रजनी दादा? नो, बहुत बढ़िया आपने बताया कि भाई विश्वास क्रिएट करने का वो तो दादा भगवान आपके खुश खुश खुश, आपको जिंदगी में कुछ नहीं करना पड़ेगा।
दादा दादा भगवान सब आपको दे देगा, सबका विश्वास लेगा तो नो प्रॉब्लम एट ऑल ये वर्ल्ड में। वेरी गुड, ओके। तो जरा वो सोचना, कल मोर बात करेगा टीचर्स अपना के ये सारा वीक टीचर बाद में संडे समराइज करेंगे आपने क्या इसमें से सीखा, ओके। कि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ओके। जय सच्चिदानंद।